ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ +2 ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो फोर्थ सम, द सेकंड पार्ट फर्स्ट करवाया सी लास्ट टाइम। रिलेशन आर इन द सेट n, आर इन द सेट n, n are natural numbers defined as r equals to xy, y equals to x plus 5 and x is less than 4। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। r ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ xy। x ਤੇ y ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? y is equals to x plus 5 and we can take the values of x less than 4 and x and y both will come from n. n is natural number. So first of all ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਐਕਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ ਜੇਕਰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 6, 1 + 5। ਜੇਕਰ ਐਕਸ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 2 ਤਾਂ ਵਾਈ आ जाएगा 7। if I put x equals to 3 then I get y equals to 8। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਵਨ ਹੈ x is less than 4। less than 4 means up to 3। तो ये रिलेशन चेक करना है, is it a reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। तो जिवें कि 1 की इमेज 1 ही नहीं है, बाकी भी साडे कोल कंडीशनस आ रही। नैचुरल नंबर दे विच साडे कोल हरेक एलीमेंट की जो प्री इमेज होए उही इमेज आवे तो रिलेशन रिफ्लैक्सिव बनता, पर इत्थे तो 1 की इमेज 1 ही नहीं है। सो वी कैन राइट r is not reflexive as a not belongs to r for every a belongs to n। a ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸੀ x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 1 is not belongs to r। ਹੈ ਤਾਂ 1 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, 2 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, 3 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। रिफ्लैक्सिव तो बाद सिमेट्रिक 1 की इमेज 6 है पर 6 की इमेज 1 नहीं है। सो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होएगा। तो लिखांगे किवें? r is not symmetric as ab belongs to r but ba not belongs to r for ab belongs to n। ए ਤੇ b ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। a ਵੀ r ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ 1 6 ਹੈਗਾ ਹੈ
पर 6 1 नहीं है, 2 7 है पर 7 2 नहीं है, 3 8 है पर 3 8 3 नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ही दे देने एग्जाम्पल 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इस तो बाद थर्ड नंबर पे 1 दी इमेज 6 इतने 6 दी नहीं हैगी, सो वी कैन राइट आर इज नॉट transitive as AB belongs to R but BC not belongs to R as well as AC not belongs to R। देखो 1 ਦੀ ਇਮੇਜ 6 ਹੈ, 6 ਦੀ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਨਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ A ਦੀ ਇਮੇਜ ਤਾਂ B ਆ ਪਰ B ਦੀ ਇਮੇਜ C ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਵਾਸਤੇ A ਦੀ ਇਮੇਜ B, B ਦੀ C ਤਾਂ A ਦੀ C ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ A ਦੀ ਇਮੇਜ C B ਹੈ, B ਦੀ ਇਮੇਜ C ਤੇ A ਦੀ ਇਮੇਜ C ਨਹੀਂ ਆ। So this relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ये relation ना reflexive होया ना symmetric होया ते ना transitive होया। तो इस तो बाद next होर कुछ सम करते हैं। ਇਹਦਾ 5th ਪਾर्ट करते हैं, सैकेंड सम ਦਾ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ R in the set A और set A ਦਿੱਤਾ है A is the set of A is what? A is set of human beings, set of human beings in a town at a particular time, at a particular time। R इथे डिफाइन किया गया है XY such that X and Y work at same place। X and Y work at same place। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ X and Y live in the same locality। इस तरीके का जेकर कोई सम आउंदा है तो ये सब तो पहला जिहड़ा रिलेशन डिफाइन किया है जिहड़े भी सैट के उपर वो सैट के बारे सब तो पहला सानू समझ होनी चाहिए है। ए इज़ वॉट? ए इज़ अ सैट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इत्थे पर्टिकुलर टाइम जे दिता होवे फिर क्वेश्चन कुछ होर बनता है, जे ना दिता है पर्टिकुलर टाइम तो फिर क्वेश्चन कुछ होर बनेगा। हुण वेखो जदों रिफ्लैक्सिव चैक करांगे रिलेशन की है एक्स वाई, तो फिर एक्स कॉमा एक्स मस्ट बिलोंग्स टू आर दे विच होना चाहिए। तो जे एक्स कॉमा एक्स लिखा तो फिर लिखांगा एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। तो ये तो गल ठीक ही होएगी। सेम प्लेस ते कम एक नाम नूं दो वारी लै लिया जाए तो उहदे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आर इज रिफ्लैक्सिव एज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। रिलेशन दे विच आ गया, इनू पढ़ांगे तो एक्स एंड एक्स। मान लो कोई दो नाम है राम एंड राम वर्क एट सेम प्लेस, तो एक नाम नूं मैं दो वारी बोल देवां तो ये रिलेशन दे विच आ गया।
x and x work at same place. For every x belongs to a set of human beings. R is symmetric as x y belongs to R. This implies that y x also belongs to R for for x comma y both belongs to A. देखो x ਤੇ y ਮੰਨ ਲਓ एग्जाम्पल ਦੇ तौर ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਮ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਆਰ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ as x comma y belongs to R, y comma z belongs to R. This implies that x comma z belongs to R for a x y z belongs to A. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਮੋਹਨ ਤੇ ਜੇ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਮੋਹਨ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਾਮ ਐਂਡ ਮੋਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ x ਐਂਡ z ਦੇ both work at same place. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ x, y x is wife of y ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵਾਸਤੇ x, x ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ x, x not belongs to R। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ not ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ। ਕਿਉਂ x ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਵੇ x is wife of x ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। x cannot be wife of itself। so ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ x y ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ y x ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ x y ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਫਿਰ y x ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨॉट ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਹੁਣ x, y belongs to R x y ਦੀ ਵਾਈਫ y ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ z ਦੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ x ਜੇ ਵਾਈਫ ਹੈ it means x is female, y is male and male cannot be wife. So this relation is not transitive. X belongs to R but y z not belongs to R। इत्थे इन्ना ही लिखना इनफ होएगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ ਨਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਮ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ
sum R is a relation on R, ਇਹ R ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ a, b, a is less than equals to b square. ये शो करना है दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव. ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, तो ना ही ट्रांसिटिव है. रिलेशन आर डिफाइन किया रियल नंबर्स के उपर. हुण नहीं आ तो आप लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज a not belongs to R for every a belongs to R reals. ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਉਹੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ. ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਜਾਣ 1 is less than 1 square true, 2 is less than equals to 2 square true. पर जे मैं ले लवां 1/2 क्योंकि रियल नंबर है तो रियल रेसिप्रोकल दे विच भी हो सकते हैं. पॉइंट वाले बिना पॉइंटा तो सारे नंबर्स दा सैट जिहड़ा हुंदा है वो रियल नंबर दे विच आ जांदा. 1/2 is not less than equals to 1/2 square. देखो जे 1/2 ते 1/2 दा स्क्वायर 1/4 ये किया जाता ये बन जाता ग्रेटर दैन 1/2 ज़्यादा है 1/4 नालों. 1/4 का मतलब एक सेब 4 बंदियां ने खाना. 1/2 का मतलब एक सेब 2 ने खाना. तो 2 ज़्यादा खाणगे तो फिर ही ज़्यादा हिस्सा आएगा. सो 1/2 इज ग्रेटर दैन 1/4. पर होना की चाहिए सी लैस दैन. सो इत्थे क्या है ना नॉट लैस दैन. एक ही एग्जाम्पल फॉर एवरी जो दिता है पुठी ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ फॉर ऑल या फॉर एवरी. ਜਦੋਂ कोई भी कंडीशन इदा दी आ जाए जिथे फॉर ऑल होए तो उत्थे एक ही जिवें कोई बंदा कहे ना मेरे वर्गा मैं बड़ा सच्चा सुच्चा कभी झूठ नहीं बोलिया तो वह एक झूठ फड़ लो तो वह बंदा ते टैग लग जाएगा ये सच्चा सुच्चा नहीं आ. सो इस तरीके दे नाल आपां जदों सम करने आ तां एक एग्जाम्पल लभ लो जिहड़ी इस रिलेशन नूं सैटिस्फाई ना करदी होवे तां वो एग्जाम्पल असीं लभ लई 1/2 भावें 1/3 लिख लेंदे 1/4 1/5 कोई रेसिप्रोकल च कोई भी वड्डे डिनोमीनेटर वड्डे वाली टर्म लै लो 2/3 2/5 इदां कुछ भी. जेकर ये रिलेशन नैचुरल नंबर ते हुंदा ना तो फिर सानू नंबर 1 तो ग्रेटर लैने पैने सी. तो इन दैट केस फिर ये रिलेशन रिफ्लैक्सिव हो जाना. आर इज नॉट सिमेट्रिक ये तो क्लियर है. एज ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर. फॉर a b belongs to a comma b belongs to reals. It means if I take the example of 1 and 2, 1 less than equals to 2 square for example, but 2 is not less than 1 square. This is enough. एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है. 1 2 स्क्वेयर नालों छोटा है पर 2 इज नॉट लैस दैन इक्वल्स टू 1 स्क्वेयर. सो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होया. आर इज नॉट ट्रांजिटिव एज ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर बट AC not belongs to R for A, B, C belongs to reals.
ए बी रिलेशन दे विच है, बी सी भी है, पर ए सी नहीं है। इनू वैरीफाई करने वास्ते फिर तो कोई एग्जाम्पल सानू सोचनी पेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ए की वैल्यू 10 सपोज कर ला, तो बी की वैल्यू सपोज कर ला 4। क्या है 10 लेस दैन इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, विच इज ट्रू। 4 less than equals to 3 square, this is also true. It means I have taken the value of c equals to 3। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੈ। 10 less than 4 square, 4 less than 3 square, but ਕੀ 10 ਹੈਗਾ less than equals to 3 square? नहीं, 10 is not less than equals to 3 square। सो इस तरीके दे नाल आपां ये भी एक एग्जाम्पल लै ली जिहदे विच ये ट्रांजिटिव भी प्रूव नहीं होया। सो आर ऑन रियल नंबर्स डिफाइंड बाय ए बी, ए लैस दैन इक्वल्स टू। अच्छा, पेपर दे विच बहुत ज़्यादा बार ये सवाल आया हुण तक। इत्थे आ जाएगा ए लैस दैन इक्वल्स टू बी स्क्वेयर या बी क्यूब, या ए लैस दैन इक्वल्स टू बी भी आ सकता। वो बाकी दा केस लैस दैन इक्वल्स टू बी खुद ट्राई करना सारे बच्चों ने। इत्थे देखो जे आ जाता बी क्यूब, ये नोट करके इस तो बाद ए लैस दैन बी क्यूब जे आ जाए तो बिल्कुल सेम एग्जाम्पल्स दे देनिया, रिफ्लैक्सिव नहीं होएगा। हुण इत्थे तो हुण बी का क्यूब जो करोगे तो 1/2 एक साइड, उसका क्यूब करोगे तो 1/8, वो तो होर छोटा हो गया। 1 is less than equals to 2 cube, but 2 is not less than equals to 1 cube। ट्रांसटिव देखो हुण जे इत्थे 3 का क्यूब करते हैं ना तो वो बन जाना 27, वो लिए ट्रू हो जाएगा। सो जे मैं इसी तरीके दे नाल चलना होवे, मान लो सेम एग्जाम्पल लैके इत्थे 27, मैनू इस वैल्यू नू चेंज कर देना पएगा 30। मान लो इत्थे मैं लिख दूँगा 30। 30 इज लैस दैन 4 क्यूब, 64 हो जाना, ठीक है। 4 लैस दैन इक्वल्स टू 3 क्यूब, 27 तो छोटा है, 4 भी ठीक है, बट 30 इज नॉट less than equals to 3 cube। सो इस तरीके दे नाल एग्जाम्पल्स नू मॉडिफाई करना पएगा। होर भी कई एग्जाम्पल्स ने, जिवें मर्जी बना लो एग्जाम्पल्स, ए तुसीं खुद ट्राई करना। जे हुण इत्थे क्यूब की जगह लैस दैन इक्वल्स टू आ जाए तो फिर की हो सकता, रिफ्लैक्सिव होएगा, सिमेट्रिक होएगा, ट्रांसटिव होएगा कि नहीं, ये तुसीं चैक करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ सम ने, ये सारे बच्चों ने करने आ। इहदे तो नैक्सट जिहड़ी एक्सरसाइज है उहदे भी कुछ सम बिल्कुल इदां दे ही आ, जिन्हां दे विच चैक करना है रिलेशन रिफ्लैक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है। सो 3B एक्सरसाइज ये बिल्कुल इहदे नाल दी है, ये सब ने करनी है। इहदे चों एक सम है फोर्थ, R equals to XY, 2x minus 2y is an integer। Relation R on Z, इत्थे A जिहड़ा सैट सानूं दिता हुंदा जिहदे विचों एलीमेंट्स लैणे हुंदे आ, वो दिता है Z। Z आ सैट ऑफ इंटीजर्स। तो ये रिलेशन
ਵੇਖਣਾ है रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की आ। पहले नंबर पे जेकर मैं रिफ्लैक्सिव चैक करना हो तो की करांगा x, x दैट इज 2x माइनस 2x, 0 आंसर आ जाएगा। तो 0 एक इंटीजर है, सो r इज रिफ्लेक्सिव एज x, x बिलोंग्स टू r for every x belongs to z, that is 2x minus 2x 0, which is an integer। a एक इंटीजर है, r is symmetric as x y belongs to r, this implies that y comma x belongs to r for x y belongs to z। देखो जे 2x माइनस 2y एक इंटीजर है तो नेगेटिव कॉमन कर लिया जाए तो 2y माइनस 2x ये भी तो इंटीजर ही होएगा। मान लो जे 5 कोई इंटीजर है तो माइनस 5 भी तो इंटीजर ही होंदा। इंटीजर नैगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स फ्रैक्शनल नहीं होंगे। 0 तो राइट साइड नू पॉजिटिव नंबर मान लो, 0 तो लैफ्ट साइड नू नैगेटिव नंबर सपोज कर लो, तो ये जिहड़े सारे नंबर्स बन जाते हैं पॉजिटिव नैगेटिव, ये बन जाते हैं तुहाडे इंटीजर्स। r is transitive as x y belongs to r, y z belongs to r, this implies that x comma z belongs to r। किवें जे 2x minus 2y इन्हां दा आंसर एक इंटीजर, 2y minus 2z, z एक तीसरा एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर लो, इन्हां दा भी आंसर इंटीजर है, ये आपां मान के चलते हैं क्योंकि गिवन है रिलेशन ही इदां दा वाई जैड, ये मान के चले। तो फिर इन्हां दोवां नूं ऐड कर दो, कभी भी दो इंटीजर्स नूं ऐड करोगे तो आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। सो 2x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 2z, तो ये भी दो इंटीजर नूं ऐड करो तो ये भी इंटीजर ही बनेगा, दैट इज 2x माइनस 2z, इसका आंसर क्या आ गया इंटीजर। देखो जो 2 एक इंटीजर है, 3 इंटीजर है, प्लस कर दो तो 5 भी तो इंटीजर ही होएगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर दो इंटीजर्स नूं ऐड किया जाए भावें एक नैगेटिव हुंदा तो इत्थे क्या आना -1, वो भी तो एक इंटीजर है। इसका मतलब जे 2x माइनस 2y इंटीजर है and 2y minus 2z is also an integer, then the sum of two integers is also an integer. So from the sum we can get 2x minus 2z is an integer। सो पहलियां दो एक्सरसाइजां रिलेशन दे विचों ने, इस तो बाकी दी एक्सरसाइजां फंक्शन दे विचों ने। इस तो बाद आपां हुण करांगे फंक्शनस। रिलेशन नूं समझना +1 दे विच भी कराया गया, कोई डाउट होण रिलेशन दे विचों तां फिर यू कैन डिस्कस विद मी, अदरवाइज जिथों तक मैनूं लगदा है कि मैं अपने वालों पूरा डिटेल दे विच तुहानूं करवाया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर लेना। सो अज लई इन्ना ही, थैंक यू।